Good morning, students. I am Mrs. Anita Verma from St. Norbert Senior Secondary School. Welcome you all in our new video session, that is Chapter 5, Part 2. Today we are going to learn the method of separation of insoluble substances. Uh, the separation of harmful or non-useful substances from a mixture is necessary to get pure and desirable substance. There are many methods of separation of insoluble substances which are based on a physical and chemical properties of the component of mixture. These methods are as follows. हम जो सब्सटेंस सॉल्यूबल नहीं होते किसी भी दूसरे सब्सटेंस में बट दे आर हार्मफुल और यूज़ के भी नहीं होते, हम उन इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को निकालने की मेथड्स आज पढ़ेंगे. सो फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग ऑन अ डेली बेसिस हमने देखा है कि हम हमारे घर में जो गेहूँ वीट आता है तो हम उससे जो कंकड़ रहते हैं या जो इम्प्योर पार्टिकल्स रहते हैं तो हम उसे हैंड पिकिंग के थ्रू अलग करते हैं. हैंड पिकिंग आप सामने पिक्चर में देख रहे होंगे. दिस इज़ अ वेरी इजी एंड बेसिक प्रोसेस of removing insoluble substances. Hand picking method is usually used for separating slightly larger sized visible impurities. This method of separation is used for solid substances and the mixture should have different sizes, color, shape or same separation by hand picking method. जो particles जो impure substance और insoluble substance बड़े होते हैं, कलर में डिफरेंट होते हैं, विजिबल होते हैं आइज़ के थ्रू, वो हम हैंड पिकिंग के मेथड से निकाल सकते हैं. एंड द सेकेंड प्रोसेस इज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग इज़ नॉट यूज्ड एट अवर होम्स. दिस इज़ ओनली यूज्ड इन द फार्म्स. बड़े बड़े थ्रेशर्स मशीन्स यूज़ करके, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. इन द फर्स्ट पिक्चर देर इज़ अ बिग मशीन कॉल्ड थ्रेसर यूज्ड. आजकल एक मशीन यूज़ होती है थ्रेसिंग के लिए. एंड पहले the threshing is done, you look at the second picture, by beating the grass on something solid. The threshing method is used to remove grains from a chaff of crops. It is usually used for agriculture activity. One chaff of a crop may have thousands of grains, so it is difficult to use hand picking separation. The threshing separation method, the stalks are dried in the sun after harvesting and then used to separate the food grain by manually or mechanically. So जैसे कि हमने हैंड पिकिंग मेथड में देखा, थ्रेसिंग मेथड में इससे अपोजिट है, बिकॉज जो इम्प्योर और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस रहते हैं वो सॉल्यूबल जो यूज़फुल सब्सटेंस है उसमें बहुत ज़्यादा मिक्स रहते हैं, उनका कलर भी डिफरेंट नहीं रहता और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, तो वो हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता है. So we use these machines and manually we take it out. इसको पहले सुखाया जाता है. आफ्टर जब हार्वेस्ट हो जाता है कोई भी ग्रेन तो उसको धूप में सुखाने के बाद इसको इम्प्योर सब्सटेंसेस को निकाला जाता है. The mechanical, there are two type of threshing. First is manual threshing and second is mechanical threshing. In the first picture we can see the mechanical threshing. A machine called thresher is used to separate the grains from their stalks. In thresher the harvested crop are put and rolled up roller, thus food grains are separated. Simple process होती है. एक तरफ से जो grains रहते हैं उसको डाला जाता है और जो भी इम्प्योर ग्रेन्स रहते हैं वो अगले साइड के थ्रेसर से, मतलब थ्रेसर के दूसरे साइड से बाहर आ जाते हैं. एंड द ओरिजिनल फूड और अ क्लीन फूड ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द डर्टी particles. And the second picture you see is a manual threshing. The stalks are beaten on a solid platform to separate the grains. Sometimes grains are separated with the help of bullocks. The bullocks walk over the stalks. So there are two method manually. या तो हाथ से किसी भी सॉलिड प्लेटफॉर्म पर मार के उसके ग्रेन्स को हटा दिया जाता है जो इम्प्योर रहते हैं, या तो बुलक्स या बुलक कार्ट आपने सुना होगा, बैलगाड़ी या बैल, उस या तो उसको किसी भी ग्रेन पे से चला दिया जाता है तो जो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो प्योर पार्टिकल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं. ओके, सो द थर्ड वन इज़ विनोइंग.
Winnowing is also a very easy process of removing the dirt particle or the impure substance from the pure substance. So the particles are blown off. कैसे? कोई भी एक ढेर बनाया जाता है ग्रेन्स का, फिर ऊपर से उसको छाना जाता है. जो भी हल्के या जो भी लाइट पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर से उड़ जाते हैं, और जो प्योर पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे प्योर ग्रेन्स के रूप में हमें मिल जाते हैं. तो यू कैन सी इन द पिक्चर इजीली, देर आर 2 पिक्चर्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे एक लेडी ऊपर चढ़ के ग्रेन्स को नीचे डाल रही है. तो इससे क्या होगा कि वी यूज समटाइम्स अ कूलर और एयर ब्लोअर, तो जिसके थ्रू जो भी लाइट पार्टिकल्स रहते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो वो उड़ जाती हैं, और जो प्योर ग्रेन है दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम इट. Winnowing or air blowing method is very useful when one of the solid substance in a mixture is very lightweight. Separating the lighter components from the heavier component by air blowing is known as winnowing. This method of separation is generally used for the farmers to separate wheat and rice from their husk, light weight. In this method, farmer take the mixture in the container and stand on a raised platform. The mixture is allowed to fall in a small quantity continuously from the height. While doing this, the container is also kept shaking well. Husk being lighter than the wheat and the rice is carried away with the wind and a form of heap at a short distance of food grains. Okay, so the next is sheaving. Sheaving is a separation of small sized substance from a bigger sized substance in a mixture is called sheaving. इससे आपने यूजुअली देखा होगा घर पे भी कि किसी भी चीज़ को छन्नी से छानो तो जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स या बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो हमें छन्नी में मिल जाते हैं. तो दिस इज़ अ सेम प्रोसेस. हम आटा छानते हैं तो आटे का जो प्योर वो रहेगा, आटा प्योर आटा रहेगा, प्योर सब्सटेंस रहेगा, तो वो नीचे गिर जाएगा बिकॉज दैट इज़ लाइटर एंड हैव मोर स्मॉल पार्टिकल्स. और जो दूसरा जो मोटा सब्सटेंस रहेगा जिसे हम परथन कहते हैं वो ऊपर सरफेस पे रह जाएगा. फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन फूड मटेरियल्स अ sieve हैविंग स्मॉल साइज्ड होल्स इज यूज्ड. इसमें जो एपरेटस यूज़ होता है वो छन्नी कहलाता है. इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिससे जो छोटे पार्टिकल्स और प्योर पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं. Sieves are of different hole size are available in separate substance of different sizes. For example, to separate a undesirable substance from a wheat flour, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो wheat flour गेहूँ को छानने में दो अलग अलग उसमें भी इम्प्योर और प्योर रहता है. जो परथन रहता है वो ऊपर रह जाता है और जो आटा रहता है वो नीचे रह जाता है. आर स्लाइटली बिगर होल स्लीव, इसके लिए बिगर होल वाली स्लीव यूज़ होती है. Sieve of further slightly bigger hole is used to separate pebbles and stone from a sand. डिफरेंट साइज़ की सीव यूज़ होती है डिफरेंट पर्पसेस में. हम अगर सैंड को प्योर करना चाहते हैं तो उसकी सीव में ज़्यादा बड़े होल्स रहते हैं, आटे की सीव में छोटे छोटे होल्स रहते हैं. ओके, सो students, complete this at your home, read it and complete your homework. Okay, thank you. गोलू हैंग हो गया, वो नहीं चल रहा. उतना हो गया कि नहीं हुआ?